New Era Technologies and RR Consultants have been in the healthcare sector of Pakistan for over 10 years. Since their inception, various projects have been taken and completed by the companies to boost healthcare facilities and standards through innovative and dynamic ideas and their execution. After a comprehensive study carried out by the Health Department in 2009, the government of Punjab uncovered some alarming facts. 2.4% population of Punjab was affected with hepatitis B. 6.7% population was affected with hepatitis C. Hospital Waste Management Project was conceived and outsourced as an initiative of the Health Department to address these issues. This project is the first of its kind in the history of Pakistan. The overall goal of the project is to reduce morbidity and mortality due to hepatitis B and C. RR Consultants are executing the operations of this project. The infectious waste collection and disposal is being taken care of with great care and through a process that is completely scientific and environmental friendly. The waste is segregated and dumped by the hospital staff into 3 color-coded baskets. The yellow basket is designated for infectious waste. The infection control team collects the infectious waste from yellow bins placed in each ward by using state-of-the-art and purpose-built trolleys. The trolleys are equipped with barcode label generators, weighing scales, and sealing machines. The team also collects sharp containers containing disposed syringe needles and blades. The collected bags are sealed and weighed properly. Barcodes generated from the weighing scales have information about the name of the hospital, the date and time of collection, and the bag's weight on them. These barcode labels are pasted on each bag and also in the record. The team also signs off the register being maintained by the hospital staff and places new bags in the yellow bins. The data of each bag is uploaded on a centrally monitored software through scanning machines. These bags are kept in temporary storage locations called yellow rooms before being transported through yellow vehicles, which are provided, one for each district. These purpose-built yellow vehicles contain refrigeration systems for transporting the waste from yellow rooms to incinerators. 26 state-of-the-art incinerators are also being installed all over Punjab. Every collected waste bag is decoded at the incinerator site before being incinerated. The environmental-friendly incinerator disposes of the waste bags, helping reduce the spread of infectious diseases. In the initial phase, the hospital waste management is being implemented in all the non-teaching district headquarter and Tehsil headquarter hospitals in all the 36 districts of Punjab. The whole process ensures the proper disposal of infectious waste on a scientific basis. It will ensure effective control over the spread of infectious diseases. This is going to be the greatest effort to reduce the prevalence of hepatitis B and C in the province. RR Consultants, being the operational head for the process, is comprised of staff who are highly energetic, dynamic, and goal-oriented. By joining hands with the Health Department, RR Consultants is committed to make the dream of infection-free Punjab come true. इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस वेस्ट है। यहाँ पे हम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट करते हैं। ये शार्प है नीडल कटिंग मैनेजमेंट के साथ। इसमें हम लोग पेशेंट का ब्लडी डिस्चार्ज, फॉलीज, एंजी और ब्लड जो स्वैब्स वगैरह होते हैं वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग येलो डस्टबिन में वेस्ट करते हैं। इसमें सारा इन्फेक्शियस वेस्ट आता है, इसमें सारा नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट आता है। जो हमारा शार्प बॉक्स है उसमें नीडल, वाइल्स और ये सारा कुछ हम वेस्ट करते हैं।
और बाकी अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग येलो डस्टबिन जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होती है और उसके अंदर हम येलो शॉपर लगाते हैं और नॉन इन्फेक्शियस में वाइट। ये 75% जब हो जाता है तो तब इसको हम इम्पटी करते हैं रैप करके और क्रैश ट्रॉली के अंदर जाके हमारा स्टाफ जो है वो वेस्ट करता है। मुझे पता है फाइल की भी नॉन इन्फेक्शन और इस पर नेडल्स वगैरह जी ट्रॉली जो ना हमारी आप स्टाफ समिया को या बुलाएं कंट्रोल की हर फ्लोर पे एक एक नर्स होती है जो कि अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करती है। तो वो फिर मीटिंग का जो रिकॉर्ड है वो ये रिकॉर्ड फाइल है और इसमें इन्फेक्शन वेस्ट जो हमारी कंपनी है सनशाइन की वो हमारा वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाती हैं। तो वो उनकी जो कलेक्शन है टोटली वेस्ट कितना है डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे उसका रिकॉर्ड इसमें हम सेव करके रखते हैं। एवरेज भी इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, ये हमारी डेली वेस्ट कलेक्शन की फ़ाइल है। इस वेस्ट जो है हमारी कंपनी है सनशाइन वो कलेक्ट करके डेली बेसिस पे जाती है मॉर्निंग में भी और मोस्टली नाइट पे भी। तो उसमें हर फ्लोर पे हमारी नर्स इंचार्ज होती है इन्फेक्शन कंट्रोल की जो कि अपने वार्ड बॉयज़ और स्वीपर्स जो जैनिटोरियल के वर्कर्स हैं उनको ब्रीफली बताया जाता है। डेली बेसिस पे जो हमारा वेस्ट है ना वो 170 kg जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है और ये इस पर रिकॉर्ड प्रॉपर कम्प्लीटली है। का महीने का पिछला मंथ का जो टोटल है वो 2938 kg जो है वो है। इसके अलावा वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट के सिलसिले में हमारी मीटिंग भी होती हैं जिसमें जैनिटोरियल वर्कर स्टाफ नर्सिस जो कि अपने हर फ्लोर पे होती हैं वो और इसके अलावा वार्ड बॉयज़ और जैनिटोरियल के जो इंचार्जेस हैं वो इसमें ऐड होते हैं। और मीटिंग में हम उन जो रिकॉर्ड है हमारे मीटिंग का वो ये फ़ाइल है, हमारी रिकॉर्ड फ़ाइल है। डिपार्टमेंट में अलग-अलग सबकी बनी होती है, ठीक है। इसमें ये हमारी हाई रिस्क मेडिसिन हैं, इसमें प्रॉपर हमारी हाई रिस्क मेडिसिन पड़ी होती हैं जो पेशेंट्स को या इंट्यूबेट करना हो या जो भी है एमरजेंसी के लिए हमारी ट्रॉली बनाई हुई है। इसमें हमारी अदर मेडिसिन आ जाती हैं। ये हमारे इसमें ड्रिप सेट्स और नेक्टर्स और आईवी लाइंस वगैरह ये सारा कुछ हमने इसमें सिरिंजेस और अपनी सारी चीज़ें मेंटेन की होती हैं। सारा कुछ हम मंगवाते रहते हैं। इसमें हमारे फ्लूइड्स पड़े होते हैं, हमारे एटीटी की चीज़ें पड़ी होती हैं, इंट्यूबेशन की सारे सामान हमारे इसमें पड़ा होता है। प्रॉपर हमारा रजिस्टर होता है जो मेंटेन होता है डेली का, मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट में ये सारी मेंटेनेंस हम इसमें करते हैं और एंट्रीज करते हैं। एक्सपायरीज जो है वो मंथली हम चेक करते रहते हैं और सारी मेंशन करते रहते हैं साथ साथ। और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उनको हम फार्मेसी पे हम उनको भिजवाते हैं, वो उसके रिप्लेसमेंट में हमें जो है ना वो दूसरी मेडिसिन देते हैं। तो मैं आपको ही कर रहा था। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? करियर से ठीक है। जी ये जो ट्रॉली है ना ये वेस्ट जो कंट्रोल का जो जितना सामान होता है इसमें शिफ्ट रख के ना इसको शिफ्ट करते हैं आप वेस्ट रूम में। और इसमें ये है कि सेव होता है और इसमें गिरने का ख़तरा नहीं होता है और लाजमी ये हर शिफ्ट में हमने रखी हुई है और इसके ज़रिए शिफ्ट करते हैं हम।
येलो बैग में proper येलो पैक बैग्स करके ऊपर वेस्ट की जो और- केजी है वो उसमें मेंशन करके फिर उसको ऊपर से टाई करके फिर इसमें डालते हैं और यहाँ से ये वेस्ट की जो ट्रॉली है ये वेस्ट रूम में जाता है, वहाँ पे हम प्रॉपर डिस्कार्ड करके आते हैं। और उस पर डिपार्टमेंट का नाम और जिसने कलेक्ट किया है वो सारा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर डिटेल्स और डेट वगैरह लिखी होती है। ये हमारा ना फ्लबोटमी रूम है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फ्लबोटमी रूम है जहाँ पे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। हमारे फ्लबोटमिस्ट हैं, ये आपको बताएंगे ये जिस तरह सैंपल कलेक्ट करते हैं और जो इन्फेक्शन वेस्ट होती है हमारी वो प्रॉपर किस तरह ये डिस्पोज़ करते हैं। जैसे पेशेंट आता है सबसे पहले तो हम ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद टोनिकेट बांध के स्वैप यूज़ करते हैं। हर पेशेंट पे एक ग्लव्स का पेयर यूज़ होता है। उसके बाद सैंपल्स वाइल में डाल के सिरिंज को बाकायदा कटर के साथ काट के वेस्ट करते हैं बॉक्स में। ये हमने ना अपने पेशेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन लगाई हुई है जी। ये हमने पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन लगाई हुई है। जब वो सैंपल दें तो वो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। ये एक छोटा सा हमने क्वेश्चनर 6 क्वेश्चंस का बनाया हुआ है कि जब भी जो हमारा फ्लबोटमिस्ट है वो सैंपल उनका कलेक्ट करे तो वो किस तरह से कलेक्ट करेगा, जो SOPs हमने उन्हें दी हुई हैं। तो पेशेंट्स खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो बाकी अदरवाइज़ हमारा जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है और वो SOPs को फॉलो करते हुए ही ये काम करते हैं सारे ना। जहाँ पे टेस्ट जो है परफॉर्म होते हैं इधर इन्फेक्शन का ज़्यादा ख़तरा होता है, ब्लड वगैरह और बाकी जो लेबॉरेटरी रूम है जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद यहाँ पे आते हैं। ये SOP के मुताबिक जो है ये डबल डोर एंट्री है इसकी, क्योंकि इधर इन्फेक्शन का ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ से आगे हमारे टेक्नीशियंस जो हैं जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनके वर्क स्टेशंस हैं। डिफरेंट मशीन्स पे ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये हर वर्क स्टेशन पे हर टेस्ट के लिए हमारे डिफरेंट टेक्नीशियंस हैं, इनकी स्पेशलिटी डिफरेंट होती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू SOPs इन्फेक्शन से बचने के लिए जो पैरामीटर्स इनको बताए गए हैं, जिनमें ओवरऑल है, इनका ग्लव्स पहनना है, इनकी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म है, वो हमने इनको SOPs डिज़ाइन करके दी हुई हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। हर एक के साथ डस्टबिन भी इसलिए रखी हुई है कि जो नॉन इन्फेक्शन वेस्ट है वो इधर फेंक सकते हैं और प्रॉपर जो है इनकी शॉप कंटेनर है और जो इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस है उनकी भी ट्रेनिंग इनको दी गई है हर हवाले से, और किस तरह से ये इन्फेक्शस वेस्ट को वेस्ट करना या डिस्पोज़ करना है वो उनको प्रॉपर गाइड किया गया है। ये हर मशीन पे हमारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हर स्पेशलिटी डिफरेंट है। जी ये हमारा ब्लड बैंक है जहाँ पे ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं, क्रॉस मैचिंग, और उसके अलावा जो ब्लीड करवाने का ब्लीड एरिया भी हमारा है। यहाँ पे ब्लड बैंक से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें। ये शार्प कंटेनर जो है वो पड़ा हुआ है, येलो बॉक्स इसको बोलते हैं। इसमें सिरिंजेस, नीडल जो है कटिंग के बाद, और ग्लास स्लाइड्स जो हैं, क्योंकि स्लाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इसमें फेंकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी नॉन इन्फेक्शन की बास्केट है वो वाइट बैग हमने टैग किया हुआ है, उसमें पेपर है या कार्डबोर्ड बॉक्सेस या कोई भी टिश्यू इसमें वेस्ट करते हैं। जो ये सारा परफॉर्म भी करती हैं और किस तरह से ये अपनी इन्फेक्शन जो है या वेस्ट है उसको डिस्पोज़ करते हैं या प्रॉपरली उसको वेस्ट किस तरह से करते हैं ये आपको गाइड करती हैं। हम लोग
लोग हमारे यहाँ पे 2 तरह का वेस्ट होता है, एक हमारा जनरल वेस्ट है और दूसरा हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। हम लोग जनरल वेस्ट जो है ये वाइट शॉपर में ये हमारे पहले लेबल्ड होते हैं, जो कि सारा जनरल वेस्ट जैसे रैपर्स वगैरह वो सारे हम लोग इसमें डिस्पोज ऑफ करते हैं। वो हमारे येलो बैग लगा हुआ जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट है वो सारा उस वाले बॉक्सेस में जाता है। अगर हमारे आ जाती हैं स्लाइड्स या टिप्स वगैरह आ जाती हैं जो शार्प्स में आती हैं, तो हम लोगों ने ब्लीच जो है वो वाले जार में, इस जार में हमारे ब्लीच होती है और साथ में वाटर है, टैप वाटर, तो उसमें हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं जितने हमारे शार्प्स, स्लाइड्स और टिप्स। और सिरिंजेस कट करने के बाद में कटर के साथ हम लोग इन वाले बॉक्सेस में वेस्ट करते हैं जो कि लेबल्ड होते हैं हमारे हॉस्पिटल नेम, डेट और सारे डाटा के साथ। और अगर 2/3 जब हो जाता है तो हम लोग इन्हें टेप करके वेस्ट कर दिया जाता है। और जनरल वेस्ट जो है वो वाइट शॉपर में जाएंगे और माइक्रो का वेस्ट में स्लाइड्स हैं। जिस तरह से हम लोग जितने भी हेमाटोलॉजी के देखते हैं वो हम लोग इस किडनी ट्रे में जो है वो वेस्ट करते हैं और बाद में ये येलो बॉक्सेस में जाते हैं, जैसे बाकी इन्फेक्शियस हमारे जितने शार्प्स वगैरह वो उस वाले बॉक्स में वेस्ट होते हैं। माइक्रो के जितने भी यूरिन सैंपल्स हमारे पास आते हैं वो हमारे उनमें हम लोग पहले ब्लीच पोर करते हैं। इन कंटेनर्स को खोलने के बाद इनको हम लोग उसमें ब्लीच पोर करते हैं और उसके बाद में हम लोग वैसे ही येलो इन्फेक्शियस वेस्ट में वेस्ट करवा देते हैं लेबल करने के साथ। इसमें भी हमारे पास है जितने भी यूरिन की स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं, यूज़ करने के बाद में हम लोग इसमें ब्लीच पोर की हुई होती है, टैप वाटर के साथ में इसमें जाते हैं और उसके बाद में ड्रेन करने के बाद येलो शॉपर में वेस्ट कर दिए जाते हैं। और ये हमारा ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में जितनी भी हम लोग कल्चर प्लेट्स हैं, कल्चर प्लेट्स को वेस्ट करने के लिए हम लोग, हमारे पास हीट रेजिस्टेंट बैग हैं क्योंकि हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करते हैं, ग्लास की नहीं करते। डिस्पोजेबल प्लेट्स को वेस्ट करने के लिए हम लोग जितने भी पॉजिटिव कल्चर्स होते हैं उनको हीट रेजिस्टेंट बैग में ऑटोक्लेव किया जाता है 121 पे। ऑटोक्लेव करने के बाद में हम लोग उसे इन्फेक्शियस वेस्ट में वेस्ट करवा दिया जाता है। Regarding the waste disposal of the laboratory specimens, there are many aspects which have to be covered very meticulously because it is highly infectious waste which should be discarded in a proper manner, and there are different methodologies for that. For blood, it is mandatory that the syringe should be cut properly and it should be disposed of after the performing the test in a proper waste container, and they are specified, and for that all the medical technologists and the technicians, they are trained for that. And then other aspect of the waste material is the urine and the other specimens, body fluids, and they are discarded in their respective way. And urine or the reagents which are used for the performing the test, they are also to be discarded because they can be infectious for the community. For that purpose we have to use different techniques, like we use the bleach when we dispose of, and then they are discarded in a particular sink, and which is drained to a particular drainage system which is regularly bleached and sent out. And there are other specimens which are like biopsy specimens or the body tissues. There are different ways of that, and they are totally sent in separate bags, and they can be very hazardous to any person, even the lab persons. So we adopt maximum safety measures. We have to dispose it off to the main waste disposal system of the hospital. और यहाँ से ये गेट ओपन करके वेस्ट यहाँ से बाहर ही डिस्कार्ड हो जाए, गाड़ी यहाँ पे आती कंटेनर। जी, ये फ्रोको हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम ये वेस्ट कलेक्शन एरिया है। यहाँ पे हम वाइट बैग्स डंप करते हैं और साथ ही इसके येलो बैग इन्फेक्शन वेस्ट होता है हमारे साथ। तो रूम में आए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब हम येलो बैग को वेस्ट करते हैं ऊपर से एरिया से लाते हैं ताकि उसको टाई अप करके पूरा कंप्लीट उसे नंबरिंग ऊपर दे के, डेट दे के, ताकि यहाँ पे ये आ जाए। यहाँ से फिर सनशाइन की ट्रॉली आती है, यहाँ से वो पिक करती हैं पूरी सेफ्टी के साथ, मास्क, ग्लव्स के साथ सारा कुछ। तो फिर हम इसको डंप करते हैं यहाँ से।